Hello friends, you are watching my YouTube channel Vartika Study Point. Hi, I am Rohit Upadhyay, computer teacher at MLZS School, Jhansi. Students, in today's video, we'll discuss about the Python plus and minus point. So easily you can know the difference of Python with other programming languages. So you can see I'm making a table. In this, the plus and minus points are written. You can see the plus points are there are a lot of plus points of Python and there are less minus points. So we'll start from the plus points of Pythons. So first point is easy to use. Earlier we also I discussed Python is very simple language. A kid of small class can also learn this language because of its syntax. Python uses a simple English keywords. Its syntax are very easy to learn, to understand and to write. So that's why Python is very easy to use. Second point is interpreted language. We know a programming language uses a compiler or interpreter. Why? To convert that program into the machine code so the machine or the hardware can understand that program properly. So here Python uses interpreter. Interpreter converts the program line by line, but compiler convert as a whole program at once. अगर हम बात करते हैं इंटरप्रेटर की, तो इंटरप्रेटर पूरे प्रोग्राम की हर एक लाइन को वन बाय वन कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. बट अगर हम बात करते हैं कंपाइलर की, तो कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में ही मशीन कोड में कन्वर्ट कर देता है. सो पाइथन क्या इस्तेमाल करता है? पाइथन इस्तेमाल करता है इंटरप्रेटर. सो इट इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. नेक्स्ट फीचर है क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज. ये भी हम लोगों ने पहले पढ़ लिया. क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज हम लोगों ने पढ़ा था प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट. Platform independent या cross platform language means Python program can run any of the operating system like Linux, Android, OS, Macintosh, Sun 1, DOS, any type of operating system you can run the Python program and it gives the same output. Next point is expressive language. Python is an expressive language. It means you have write less code for do a वेरी बिग टास्क. अगर आपको कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो आपको बहुत ज़्यादा प्रोग्राम के बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस या कमांड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है. कम कमांड लिखकर आप बहुत सारे वर्क को कंप्लीट कर सकते हैं. बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह हमें बहुत सारे कमांड्स ऑफ लाइन्स नहीं लिखने पड़ते हैं पाइथन में हम लोग कह सकते हैं कि बहुत कम शब्दों में पाइथन के बड़े से बड़े प्रोग्राम को या बहुत कम कमांड्स में हम लोग पाइथन के बहुत बड़े से बड़े प्रोग्राम को बना सकते हैं. दैट्स व्हाई इट्स अ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज. बहुत कम शब्दों में इसमें बड़ी बात को कहने की पावर है. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्री एंड ओपन सोर्स. Free and open source, yes, Python is free. Means you no need to pay for this particular language, and it is also a open source. Open source means open source means कि anyone can change any type of change in this language. If you know develop things, if you know some advanced things, so you can add in Python as a feature and you can remove its old features too. अगर आप पाइथन लैंग्वेज को बहुत अच्छे से जानते हैं और आपने इस पर काम किया हुआ है, तो आप ओपन सोर्स एक कम्युनिटी है जिस कम्युनिटी के अंदर हम लोग इसमें बदलाव कर सकते हैं, फ्यूचर डेवलपमेंट्स इसमें हम लोग कर सकते हैं. ओपन सोर्स का एक मतलब है कि ये किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंडर नहीं आती है. जैसे अगर हम बात करते हैं फेसबुक या हम बात करते हैं गूगल, तो ये पर्टिकुलर कोई कंपनियां हैं. पर पाइथन एक फ्री है, एक ओपन सोर्स है, मतलब कोई भी कहीं से भी इसमें अपने डेवलपमेंट को शो कर सकता है, इसमें नई चीज़ों को बना सकता है. कोई भी पर्टिकुलर इस पे अपनी ओनरशिप नहीं दिखा सकता. तो इट मीन्स पाइथन इज फ्री एंड ओपन सोर्स. यस, इट इज फ्री. यू कैन डाउनलोड इट पाइथन फ्रॉम द www.pythons.org. यू कैन डाउनलोड इट पाइथन अकॉर्डिंग टू योर सिस्टम्स स्पेसिफिकेशन.
Next feature is completeness. Completeness means it support all types of functions or modules or features which is present in other programming languages. ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम पाइथन में नहीं कर सकते और किसी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर सकते हैं. तो काफ़ी सारे इसमें डेवलपमेंट्स चल रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट लैंग्वेज है, हर चीज़ हम लोग पाइथन में कर सकते हैं. Next is object oriented. Python is a object oriented programming language. Object oriented means everything, any type of variable we are taking, any type of value we are taking, behave as a object in Python programming. That's why our programming is very simple in Python. And next one is varieties of uses. There are a lot of applications we can create by using the Python programming language. We can create the console, we can create the console apps, we can create the web apps, we can create the desktop applications and mobile applications. There are games we can create, softwares we can create. So there are a lot of uses are available of Python. So these are the plus point of Python. Now we are going to minus points. So what are the leg of this language? Next, first is slow language. Okay, slow language means Python जो है वो slow language है. अब आप slow language कैसे है ये? It means हमने अभी पढ़ा Python uses interpreter. Python एक interpreted language है. It means the commands of Python language convert to machine code line by line. अब जब कोई कमांड लाइन बाय लाइन कन्वर्ट हो रहा है तो ऑब्वियसली है उस कमांड को उस पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट होने में ज़्यादा समय लगेगा. ये कंपाइलर नहीं, कंपाइलर एक बार में ही पूरे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर देता है, बट पाइथन में इंटरप्रेटर होता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को कन्वर्ट करता है मशीन कोड में. दैट्स व्हाई इट इज अ लिटिल बिट स्लो देन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस दैट यूजेस कंपाइलर. Next is less library. Yes, Python having a lot of functions, modules or the things is available, but till now it have less library than C, Java, Perl or other programming languages. बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंपैरिजन में अभी भी इसकी लाइब्रेरी जो है वो छोटी है, बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है, बट डेली ये धीरे धीरे अपडेट होती जा रही है. नेक्स्ट वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग ऑन टाइप बाइंडिंग. यस, पाइथन जो है वो टाइप बाइंडिंग में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है. अब ये टाइप बाइंडिंग क्या होता है? टाइप बाइंडिंग मीन्स a data type. In any programming language we allocate a particular data type to a variable so that variable can store that type of value only, but in Python it is not necessary. We can save different types of values in one variable. Here you can see an example. If we are working in C, so we have to decide a variable type. Suppose I have decided a variable type int a. So this a can only store an integer type value. This a only store an integer type value. But if we want to change its value, अगर हमें इस वैल्यू को चेंज करना है, अगर मुझे इस इंटीजर वैल्यू की जगह कोई नेम, कोई स्ट्रिंग इसमें सेव करना है या कोई डेसिमल या फ्लोट वैल्यू इसके अंदर सेव करना है, दैट वी कैन नॉट डू बिकॉज सी लैंग्वेजेस या दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बाइंडिंग बहुत स्ट्रांग होती है. वहां पर आपने वेरिएबल का टाइप एक बार बता दिया, अब उस पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो वेरिएबल केवल और केवल इंटीजर टाइप की वैल्यू को ही सेव कर सकता है. बट पाइथन में ऐसा टाइप डिक्लेयर करने का कोई सेंस नहीं है. यहाँ पर हम लोग वेरिएबल का टाइप नहीं बताते, हम लोगों ने बेसिकली बस a = 10. सो यहाँ पर जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो चेक करता है कि उस वेरिएबल के अंदर किस तरह की वैल्यू सेव की गई है. अगर वेरिएबल के अंदर डेसिमल वैल्यू सेव की गई है, कोई इंटीजर वैल्यू सेव की गई है, तो वो उस वेरिएबल को इंट टाइप का, इंटीजर टाइप का बना देगा. अगर मैं यहाँ फिर से तो दूसरा एक कमांड लिख देता हूँ 12.5, a = 12.5, देन यू कैन सी हियर द वैल्यू इज डेसिमल. वैल्यू जो है वो डेसिमल में है. देन इंटरप्रेटर इस a को फ्लोटिंग टाइप का बना देगा. अगर मैं इस a के अंदर कोई नाम सेव करता हूँ, मैंने एक नाम सेव कर दिया राम, तो ये जो राम है वो एक नेम है, वो एक स्ट्रिंग है, तब इस a का जो डेटा टाइप होगा वो एक स्ट्रिंग हो जाएगा. इन द सेंस यहाँ एक ही प्रोग्राम के अंदर हमने एक ही वेरिएबल में अलग अलग वैल्यूज़ को इंसर्ट कर दिया, तब कोई हमारे पास एरर मैसेज नहीं आएगा. लेकिन जब हम किसी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जहाँ पर डेटा टाइप डिक्लेयर किया गया है वहाँ पर हम डिफरेंट वैल्यूज़, डेटा टाइप से डिफरेंट वैल्यू को जब हम लोग वहाँ पर इंसर्ट करते हैं तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एरर मैसेज शो कर देती है. सो
जो पाइथन है वो भी टाइप बाइंडिंग में उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। नेक्स्ट है नॉट इजीली कन्वर्टेबल। पाइथन जो है वो इजीली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट नहीं हो सकती है। इट्स नॉट इजीली कन्वर्ट इनटू द अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। सेम एज यू कैन easily you can convert Java program to C++ or C++ program to Java programs, but because of weak syntax, Python you cannot convert Python program to other programming languages, क्योंकि इसके सिंटेक्स बहुत ही ज़्यादा आसान है। बाकी दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को इसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो इसके जो कन्वर्टर हैं वो अभी तक अवेलेबल हमारे पास नहीं है कि आप डायरेक्टली किसी C++ या C के या जावा के प्रोग्राम को पाइथन में या पाइथन के प्रोग्राम को किसी दूसरे लैंग्वेज के प्रोग्राम में ईजिली कन्वर्ट कर पाए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द डिफरेंस what are the exactly Python is and it is not. So I hope you enjoyed the video. Thank you. Have a nice day.